Now the next kind of termination punctuation mark वो है question mark. This is very easy. Question mark आपको पता है वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आप कोई question पूछ रहे हैं, किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं. So you are going to put question mark on the end. This is very important. Otherwise आप grammatically wrong English लिखेंगे अगर आप इन punctuation marks का ध्यान नहीं रखते हैं. So we have certain example of questions. What do you do? तुम क्या करते हो? Are we allowed to feed the animals? If it rains tomorrow, should I bring my umbrella? Are you excited about your new job? Who lives in that house? तो इन सारे sentences में क्या हो रहा है? स्पीकर आपसे कुछ सवाल कर रहा है, कुछ पूछ रहा है. तो जब आप कुछ पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे. आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी चाहे किसी को मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या नॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, वहाँ अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं और क्वेश्चन मार्क डालेंगे तभी रीडर को क्लियर होगा दैट यू आर आस्किंग समथिंग. इफ़ यू आर नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस then it will not become clear whether you are asking something or you are telling something. Now let's move ahead. Okay. So these were the three kinds of terminal punctuation marks जिसका यूज़ आप करते हैं sentences को end करने के लिए. हमारे 3 terminal punctuation marks थे full stop which is used in case of imperative and declarative sentences. दूसरे थे exclamation marks which are used at the end of exclamatory sentences. And at last we had question mark which is used at the end of questions. Now I have a small exercise for you. यहाँ पे कुछ sentences हैं and you have to put the correct punctuation marks. You have to add periods which means full stop or exclamatory mark or question mark. So I'll read the sentences. उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और punctuation marks put on करने की ट्राई करेंगे. After that, start the video again and I'll be discussing the solutions with you. So the first one is, the sun rises in the east, it sets in the west. I am going to the supermarket. Do you want to come along? We will get in touch with you when we have a job opening. Why are you still here? I told you to get out. So video pause कीजिए and put in the punctuation marks before coming again to the solutions. Okay, so the first one, the sun rises in the east. ये एक information थी इसलिए full stop. Next part, it sets in the west. This is also information, तो full stop. I'm going to the supermarket. यहाँ भी आप कुछ information दे रहे हैं. It's imperative or declarative sentence. So full stop. Do you want to come along? यहाँ आपने सवाल किया. It's an interrogative sentence, इसीलिए आपने question mark use किया. We will get in touch with you when we have a job opening. This is also plain sentence. This is declarative sentence. आप एक information दे रहे हैं, एक declaration बना रहे हैं, कुछ plain information दे रहे हैं अगर मैं simple language में बोलूँ, इसीलिए आपने full stop use किया. Fourth sentence, why are you still here? यहाँ आपने एक सवाल पूछा, you are questioning something. So question mark, I told you to get out. यहाँ आप गुस्सा दिखा रहे हैं. The emotion is that of anger. तो ये exclamatory sentence है, इसीलिए exclamation mark to end this particular part of sentence. I hope this is clear to you कि कौन से terminal punctuation marks आपको कहाँ use करने हैं. अगर आपको कोई doubt है तो वापस से इस part को एक बार go through कीजिए and it will be very clear to you next time you start writing a piece of something. अब ये तो थे टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स यानी सेंटेंस को एंड करना. अब हम बात करते हैं पॉजेज़ की. पॉजेज़ यानी रुक जाना, यानी सेंटेंस एंड नहीं हो रहा है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है, अब ज़रा सा रुकते हैं. उसके लिए जो सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया जाता है वो है कॉमा. सिंबल आपके सामने है कि कॉमा कैसे यूज़ होता है. सो लेट्स सी कि कॉमा को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पंक्चुएशन. द नंबर 1 condition where you use comma is where you have a separate items in a list. यानी एक लिस्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को डिवाइड करने के लिए यानी उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. पुट कॉमा आफ्टर एवरी आइटम एक्सेप्ट द लास्ट वन. तो लिस्ट में जितनी आइटम्स हैं सबके बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन.
क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका सेंटेंस एंड होगा तो लास्ट में आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू बाय मिल्क, कॉमा, एग्स, कॉमा, फ्लावर एंड शुगर फॉर द केक. तो देखिए लास्ट में आपने एंड यूज़ किया है इसलिए कॉमा नहीं यूज़ होगा. सो पहले की जो आइटम्स थी वहाँ पर आपने कॉमा यूज़ किया, मिल्क, एग्स, फ्लावर, कॉमा एंड केक. एंड के बाद कॉमा यूज़ नहीं होता है. और अगर आपका सेंटेंस शुगर पे ही एंड हो जाता तो आप वहाँ पर भी फुल स्टॉप यूज़ करते. द कार इज़ स्पेशियस, कॉमा, स्टाइलिश, कॉमा एंड अफोर्डेबल. हमेशा याद रखिए लास्ट आइटम से पहले आप एंड यूज़ करेंगे और एंड के बाद कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट, वाई डोंट यू गो अपस्टेयर्स, कॉमा, टेक अ शावर एंड गेट रेडी टू लीव. अब यहाँ सवाल पूछ रहे थे इसलिए आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला. सो देखिए एक सेंटेंसेस में बहुत सारे टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हो सकते हैं. आप एक लिस्ट दे रहे हैं तो कॉमा 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 यूज़ होगा, और अगर एंड में सवाल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा. अगर सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो फुल स्टॉप यूज़ होगा. नाउ द सेकेंड यूजेज ऑफ कॉमा. और कॉमा को आप कहाँ यूज़ करते हैं? वेर यू हैव टू सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस का पार्ट नहीं होते. अब इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स हैव अ लुक. फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब्स. जैसे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे वर्ड से शुरू होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, सैडली. तो जब आप ऐसा एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के शुरू में तो आप उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे. अनफॉर्चुनेटली, कॉमा, ही मिस्ड हिज फ्लाइट. अब लास्ट में आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, वहाँ भी आप अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव है तो फुल स्टॉप. नेक्स्ट, फ्रैंकली, कॉमा, आई डोंट केयर वेदर शी अग्रीज विद माई डिसीजन और नॉट. तो यहाँ क्या है, ये जो वर्ड्स हैं अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, होपफुली, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, दे आर जस्ट एडिशनल एडवर्ब्स. तो जब आप ये एडिशनल वर्ड्स यूज़ करेंगे इनको सेंटेंस से सेपरेट करना है इसलिए हम कॉमा यूज़ करेंगे. और जब भी आप स्पीकिंग की बात करते हैं यानी व्हेन यू रीड इंग्लिश, व्हेन यू रीड द सेंटेंसेस, वहाँ आप कॉमा को इंडिकेट कैसे करते हैं? यू स्पीक दैट वर्ड, देन यू पॉज फॉर अ मिनट, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे एंड देन यू कंटिन्यू अहेड. फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट. दिस इज़ द राइट वे टू रीड. अब अगर मैं बोलूँ अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग. तो पंक्चुएशन आपकी रीडिंग में भी मिक्सड होनी चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने रीड किया, फ्रैंकली, आई डोंट केयर वेदर शी अग्रीज विद माई डिसीजन और नॉट. बिकॉज जब आप बोलेंगे और उन पंक्चुएशंस को यूज़ करेंगे इट विल मेक योर स्पीच मोर इफेक्टिव और जो इमोशंस हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे आपकी स्पीच में भी. नेक्स्ट, आप कॉमा तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे सर, मैम, एमा, यानी किसी का नाम लिया है. जब आप किसी को बुला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एमा, कैन यू कम हियर एंड हेल्प मी विद दिस? सर, प्लीज़ हैव अ सीट. मैम, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? सो व्हेन यू आर एड्रेसिंग समथिंग, किसी को बुला रहे हैं तो आप कॉमा यूज़ करते हैं बिकॉज यू हैव टू पॉज फॉर अ मोमेंट. एक मोमेंट के लिए आपको रुकना होता है, उसके बाद यू कंटिन्यू विद योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ऐसे केसेस में भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है.